السلام علیکم. Please start with the questions. خاموش. آپ بسم اللہ کریں. خاموش خاموش خاموش. آپ کوشچن سے شروع کر لیں نا. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ کوئٹہ تشریف لائے ہیں. آج کا جو میٹنگ ہے نواب صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ معمول کی ملاقات نہیں لگ رہی ہے، یہ کوئی اہم چیز ہے. کیا کہا نواب صاحب سے؟ میں پہلے بھی یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آ رہا ہوں. اور ہمیشہ نواب صاحب نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنے وطن کے، اپنے خطے کے ایک بڑا خاندان اور صاحب حیثیت خاندان، اپنے قوم کے بڑے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ہیں. تو میرے خیال میں 2013 کے بعد تو مجھے کم از کم یاد ہے جب بھی کوئی پارلیمانی معاملات آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ جمعیت کو سپورٹ دیا ہے. اور اب جب میں آج مستونگ میں ایک تعزیت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نواب صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے پاس چائے پی. تو ہم آئے اور چائے پی، اور ان کی طرف سے جو محبت کی مٹھاس تھی اس میں، اس کی وجہ سے مجھے چائے میں چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. اس مرتبہ مٹھاس بہت زیادہ تھا. تھوڑا سا یہ بتائیں، ہمارے پاس جو خبریں ہیں، آپ نے نواب صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت دی ہے، کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نواب صاحب جہاندیدہ آدمی ہیں اور سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی ہے. وہ ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے اس کو یہاں کی سیاست پہ. تو ظاہر ہے جی کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ہم تو خوش آمدید کہیں گے. سر اوور آل ملکی سیاست پر کیا کہیں گے؟ اور ریسنٹ آپ سے افغان وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے جو ان کا ماتھا چوما ہے، بڑا عالمی میڈیا میں اس کے چرچے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم افغانستان کے امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان کے روز اول سے سیاسی طور پر حامی رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے کہ امریکہ طاقتور ہے، اس نے کہہ دیا دہشت گرد، تو پھر ہم بھی کہہ دیں دہشت گرد. نہ میں مشرف ہوں نہ میں کسی امریکہ کا غلام ہوں. آزادانہ طور پر دنیا میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، احترام کے تعلقات ہیں، اصول پر مبنی ہوتے ہیں. اور آپ خود اندازہ لگائیں، آج امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، لیکن افغانستان میں اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گوانٹانامو بے کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر باگرام جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر شبرغان جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اور پھر یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ اگر واقعی یہ دہشت گرد تھے. اور یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے جو قیدیوں کے بارے میں حقوق ہیں، طالبان اس زمرے میں نہیں آتے. لیکن آج ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، کئی سالوں پر محیط مذاکرات. آج انہوں نے امارت اسلامیہ کو بھی تسلیم کیا. آج پاکستان میں وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. اور اگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہر دم آئیں. اگر میرا ملک اس کا استقبال کر سکتا ہے تو فضل الرحمان بھی اپنے گھر میں اس کا استقبال کر سکتا ہے. تھوڑا سا ملکی لیول پر مولانا صاحب، آپ ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے مولانا صاحب، آج تک آپ نے جتنی بھی کالز دیے ہیں پروٹیسٹ کے، اسلام آباد جائیں گے میرے خیال میں، ابھی آپ کا ارادہ بھی ہے شاید، اس پروٹیسٹ کو ابھی تک آپ ناراض نہ ہو، مس کال سمجھا جاتا ہے.
अभी तक आपने टफ टाइम नहीं दिया है तब्दीली सरकार को। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं, और बीच में हमारे सूबे में तो कुछ बल्दियाती इलेक्शन आ गए और बाकी सूबों में भी हर पार्टी के अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़ियादत है वहाँ पे मौलाना ओवैस नूरानी साहब वो सिंध की PDM की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए मुशावरत हो सके। इसी तरह मैं भी एक हफ्ते के बाद अपने सूबे में PDM की जमातों के सरबराहान को बुलाऊंगा। महमूद खान अजज़ी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की PDM की जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी 1-2 महीने हैं और उसमें जो मुशावरत की इज्तिमाई तैयारियों की जो ज़रूरत है इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करें। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमीयतुल इस्लाम ने कितना सपोर्ट? मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दान दी हुई थी। और साहब KPK में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बल्दियाती इंतखाबात दिख रहे हैं तो बहुत सारे मार्कों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है डे वन से जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग उस पर चल रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं है। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग। सर थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक CM गए, दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUIF और आपका ज़ाती भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक मौक़िफ़ रहा है। आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आपने यहाँ पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी को सपोर्ट किया। देखिए, अदम एतमाद ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ का फ़र्ज़ होता है, उसकी ड्यूटीज़ में से होता है कि हमेशा अदम एतमाद अपोजिशन साइड से आता है। तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूँगा। लेकिन चूँकि हम अपने रवैये पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। साहब, आज की मीटिंग हुई आपकी मौलाना साहब के साथ, क्या कहेंगे इस पर?
जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मौलाना साहब 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं, 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं आप। देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सुबह में भी जाली हुकूमत थी, और उनका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। तो मुझे बताया गया कि नवाब साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरे पास चाय पी। तो हम आए और चाय पी, और उनकी तरफ से जो मोहब्बत की मिठास थी उसमें, उसकी वजह से मुझे चाय में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई। इस मरतबा मिठास बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा ये बताएं। हमारे पास जो खबरें हैं, आपने नवाब साहब को जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की दावत दी है, कहाँ तक इसमें सदाकत है? देखिए, बात यह है कि नवाब साहब जहांदीदा आदमी हैं, और सियासत तो उनके घर की लोंडी है। वो मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, बलूचिस्तान की सियासत को भी जानते हैं, और बड़ी गहरी नज़र है उसको यहाँ की सियासत पे। तो ज़ाहिर है जी के फैसला तो उन्होंने करना है, और हम तो खुशामदीद कहेंगे। सर, ओवरऑल मुल्क की सियासत पर क्या कहेंगे? और रिसेंट आपसे अफगान फिर खारजा की जो मुलाकात हुई है, तो आपने जो उनका माथा चूमा है, बड़ा आलमी मीडिया में उसके चर्चे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम अफ़गानिस्तान के अमारत इस्लामिया और तहरीक तालिबान के रोज़ अव्वल से सियासी तौर पर हामी रहे हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं जाते कि अमेरिका ताकतवर है, उसने कह दिया दहशतगर्द, तो फिर हम भी कह दें दहशतगर्द। न मैं मुशर्रफ हूँ, न मैं किसी अमेरिका का ग़ुलाम हूँ। आज़ादाना तौर पर दुनिया में हमारे लोगों से ताल्लुक़ात हैं, एहतराम के ताल्लुक़ात हैं, उसूल पर मबनी होते हैं। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आज अमेरिका कहता है कि इंसानी हुकूक़ के लिए कोई जोग्राफियाई हदूद नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर वो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं तो फिर ग्वांटानामो बे का भी हिसाब देना होगा, फिर बागराम जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, फिर शबरगान जेल के उक़ूबत खानों का भी हिसाब देना होगा, और फिर ये भी हिसाब देना होगा कि अगर वाकई ये दहशतगर्द थे। और यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत का सुकूत हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जिनेवा इंसानी हुकूक़ के जो कैदियों के बारे में हुकूक़ हैं, तालिबान उस ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन आज उनके साथ मुज़ाकरात भी किए, कई सालों पर मुहीत मुज़ाकरात। आज उन्होंने अमारत इस्लामिया को भी तस्लीम किया। आज पाकिस्तान में वो आए हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं, और अगर उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो हरदम आए। अगर मेरा मुल्क उसका इस्तकबाल कर सकता है तो फजल रहमान भी अपने घर में उसका इस्तकबाल कर सकता है। थोड़ा सा मुल्की लेवल पर मौलाना साहब, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है मौलाना साहब, आज तक आपने जितनी भी कॉल्स दिए हैं प्रोटेस्ट के, इस्लामाबाद जाएंगे मेरे ख्याल में, अभी आपका इरादा भी है, इस प्रोटेस्ट को अभी तक आप नाराज़ न हो, मिस कॉल समझा जाता है। अभी तक आपने टफ टाइम नहीं दिया है तब्दीली सरकार को। देखिए, पूरे मुल्क में कारकुनों की सतह पर तैयारियां शुरू हैं, राब्ते शुरू हैं, और बीच में हमारे सूबे में तो कुछ बल्दियाती इलेक्शन आ गए, और बाकी सूबों में भी हर पार्टी के अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। इंशाअल्लाह मैं अभी कराची जाऊंगा। हमारी जो मरकज़ी क़ियादत है वहाँ पे मौलाना ओवैस नूरानी साहब, वो सिंध की PDM की क़ियादत को बुलाएंगे ताकि 23 मार्च के लिए मुशावरत हो सके। इसी तरह मैं भी एक हफ़्ते के बाद अपने सूबे में
PDM की जमातों के सरबराहान को बुलाऊंगा। महमूद खान अजज़ी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की PDM की जमातों के सरबराहान को बुलाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ से पंजाब में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। चूँकि हमारे पास अभी 1-2 महीने हैं और उसमें जो मुशावरत की इज्तिमाई तैयारियों की जो ज़रूरत है इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करें। मौलाना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जमीयतुल इस्लाम ने कितना सपोर्ट? मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसने जब वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दान दी हुई थी। और साहब KPK में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड रहा, लेकिन अब जो बल्दियाती इंतखाबात दिख रहे हैं तो बहुत सारे मार्कों में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीत रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आपका नज़रिया है डे वन से जो आप कहते हैं उसकी जो है लोग उस पर चल रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है, लेकिन जो क़ुव्वतें और नादीदा क़ुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं और बस एक मजहबी लिबास हमारा है। हम उलमा की जमात भी हैं, हम दीन इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की भी बात करते हैं और पाकिस्तान में आइन की रूह से जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है उसकी बात करते हैं तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। लिहाजा इस किस्म की सोच ख़त्म हो जानी चाहिए और ये जो है कि हमने एक जमात को इसलिए कंट्रोल रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, ये सोच अब ख़त्म, शिकस्त खा चुकी है। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। हमें पाकिस्तान चलाना आता है और हम दियानतदार लोग हैं। खुदा का फजल है कि एक वाहिद जमीयत उलमा इस्लाम के मिन हैसुल जमात उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की करप्शन की बातें नहीं है। हाँ, अब तो साबित हो गया कि करप्शन की बातें भी एक टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे कोई है या नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर मुल्क में रहेंगी तो मुल्क का कारोबार ठप हो जाएगा। सियासतदानों को बदनाम करना, उनकी तजलील करना, ये वतीरा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना जो लोग सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के प्रोपेगंडा करते हैं वो सियासतदानों से 1000 दर्जे ज़्यादा करप्ट लोग। साहब थोड़ा सा ये यहाँ बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली आई, आप पार्टी के एक CM गए, दूसरे आए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUIF और आपका ज़ाती भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक मौक़िफ़ रहा है। आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आपने यहाँ पे बलूचिस्तान में बाप पार्टी को सपोर्ट किया। देखिए, अदम एतमाद ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ का फ़र्ज़ होता है, उसकी ड्यूटीज़ में से होता है कि हमेशा अदम एतमाद अपोजिशन साइड से आता है। तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी ने अदम एतमाद किया। अब अगर मुफ्त में मेरी झोली में इतने ज़्यादा लोग आते हैं, मैं क्यों इनकार करूँगा। लेकिन चूँकि हम अपने रवैये पर कायम रहे कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, फिर वही सारे अंडे एक ही टोकरी में दोबारा जमा हो गए, उससे भी ज़्यादा जमा हो गए। साहब, आज की मीटिंग हुई आपकी मौलाना साहब के साथ, क्या कहेंगे इस पर? जो बातें मौलाना साहब ने आपको कही कि यानी आज के मीटिंग में इतनी मिठास थी कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। मौलाना साहब 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं, 2022 में हम इंतखाबात देख रहे हैं आप। देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ। मायूस हम नहीं हैं तुलुए सहार से, अब तुलुए सहार होगा इंशाअल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी और अब भी जाली हुकूमत है और सुबह भी जाली हुकूमत थी और उनका पूरा वो अभी भी हमारे सूबे में माशाअल्लाह
फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।